friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2017 paper Civil Law 1. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. As I always mention, paper comes like this. This is booklet number, series D, 100 marks, 1 hour, 50 questions, paper Civil Law 1, and no negative marking. So question number 1 is, for the purpose of specific relief act, the word settlement means, अब जो ये word settlement है ये कहाँ डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया सेक्शन 2B ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? An instrument other than will or codicil whereby the destination or devolution of successive interest in movable property disposed of. In movable or immovable property disposed of. तो देखिए मूवेबल लिखा हुआ है, इमूवेबल नहीं लिखा हुआ, बट ये स्टेटमेंट ठीक है. फिर आगे इंक्लूडिंग कोडाइसिल नो, इंक्लूडिंग ये, तो ये तीनों हो गए गलत. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ए. बट ये भी पूरा लिखना चाहिए प्रॉपर. Next is 2. In which of the following cases prohibitory injunction under SRA was discussed? That was Daulat Ram versus Gopal Krishnan. C is the answer. Next is 3. Jurisdiction of civil court is not excluded in respect of adoption. The question regarding adoption involves declaration as to status character of a person can be decided only by civil court. This was held by Supreme Court in India in Ramchandra Dagadu Sonavane versus Vittu. A is the answer. Next is 4. Under the Himachal Pradesh Courts Act, additional district judge as may be necessary for speedy disposal of pending business before the court of any district judge can be appointed by High Court in consultation with state government after consultation with High Court. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 6 of हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में. Next 5. The High Court or district judge may assign to an additional district judge any of the function of district judge, including या फिर not including the function of receiving listing cases and appeals. तो B इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में. Next 6. Under section 14 of Himachal Pradesh Courts Act, High Court may by general or special order authorize any subordinate judge to take cognizance of and any district judge to transfer to such subordinate judge under his control any proceeding or class of proceedings specified in such order under any of the enactment mentioned in that section. One of the act is, अब देखिए वहाँ पर 3 एक्ट लिखे हुए हैं. कौन कौन से? एक तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, और लिखा हुआ है तीसरा प्रोविंशियल एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट. तो इसमें से एक ये है, तो सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 7. प्रोविजन फॉर अपील फ्रॉम सुबॉर्डिनेट जजेस टू डिस्ट्रिक्ट जज. और देखिए वहाँ पर अब ये जो है वर्ड बार बार सुबॉर्डिनेट वर्ड यूज़ किया गया है. इसको बाय 2003 की अमेंडमेंट से यहाँ पर सिविल यूज़ कर दिया गया, इसको हटा दिया गया वर्ड को. तो ये भी इन्होंने लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे डाल दिए हैं और चेंज नहीं किया. सेक्शन कौन सा है? ये 21 सेक्शन है. सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 8. अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. सी इज़ द आंसर. सेक्शन बता ही दिया 9. Section 9. Power to make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of Himachal Pradesh Courts Act under 29 lies with High Court of Himachal Pradesh. A is the answer. Next is 10. Which of the following instrument is a bond under Indian Stamp Act as applicable to state of Himachal Pradesh? बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 2(5) ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय पर्सन ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर on condition that obligation shall be void if specified act is
परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड एज अ केस में बी। फिर एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय अ विटनेस एंड नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर whereby a person obliges himself to pay money to another. This is also correct. फिर any instruments so attested and whereby a person obliges himself to deliver grain or other agricultural produce to another. ये बिल्कुल ठीक है, तो all of the D इसका आंसर रहेगा। Next 11, which of the following is not a lease under Indian Stamp Act as applicable to the state of हिमाचल प्रदेश। तो डेफिनेशन कहाँ है, 216 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में पट्टा लिखा हुआ है, काबूलियत, अंडरटेकिंग, राइटिंग, नॉट बीइंग काउंटर पार्ट, ये भी लिखा हुआ है, ये है ए, ये है बी। और फिर एनी इंस्ट्रूमेंट बाई विच 1% कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम की बात नहीं की गई है। डी है बाई विच टोल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन आर लेट एंड एनी राइटिंग, ये है इतना, यहाँ तक है ये सी, और आगे लिखा हुआ है डी। तो इसमें रॉन्ग कौन सा हुआ, सी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, आउट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट विच वन मे नॉट बी स्टैम्प्ड विद द एडेसिव स्टैम्प। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट पर लगेगा, एंट्री ऑफ द एडवोकेट ये भी है, नोटरियल एक्ट्स पर, चेक्स पर नहीं होता। देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस पेपर देखेंगे अपना 1920 का, वहाँ में मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में ही। डी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया एडेसिव स्टैम्प्स के बारे में, ये है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी आर नॉट बीइंग लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन टू डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी टू बेनिफिशियल ओनर, तो ये लायबल नहीं होगी। ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनर फॉर सिक्योरिटी डेल्ट बाय डिपॉजिटरी, ये भी नहीं होगी। तो बोथ इसमें आंसर रहेगा, सी इज़ द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 8A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। और ये अमेंडमेंट से आया था, कौन सी अमेंडमेंट थी ये, अमेंडमेंट ऑफ 1996। Next 14, instrument executed outside India chargeable with duty but not being a bill of exchange or promissory note are required to be stamped after first received in India within 3 months. A is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 18 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। Next 15, all duties and penalties and other sums required to be paid for instrument not duly stamped may be recovered by the collector only by distress and sale of movable property of the person from whom the same are due, only by any process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue. तो दोनों में हो जाए, दोनों केसेस में आइदर ए और बी, सी इज़ द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 48 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 16, एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्री, ऑक्यूलर, बोथ, सी इज़ द आंसर। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में मेंशन किया गया है ये एविडेंस एक्ट में। Next 17, proof of a fact for the purpose of evidence depends on mathematical demonstration, no. Accuracy statement, no. Probability of its existence, B is the answer. Next is 18, proposition, a statement is genus, admission is species, while confession is a subspecies. ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 is correct and 2 and 3 are incorrect. तो A इसका आंसर रहेगा, बिकॉज अदरवाइज तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई 1 से। Next 19, declaration by a person not able to be called as witness in the course of business is admissible under section 32 का 2, B is the answer. 32 के 1 में क्या है, dying declaration, DD. Next 20, omnia presumptum right esse acta means all acts are presumed to be rightly done. ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये HP सीरीज में पूछा गया है पहले। A इसका आंसर रहेगा। अभी तक हमने 3 पेपर किए हैं, देखिए 4th हम कर रहे हैं, कितने रिपीट क्वेश्चंस दिख गए हमें। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 21, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी गिव्स राइज टू प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर टू बी फिक्स्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडर सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज 5 year old. डी इज़ द आंसर। सेक्शन 90 जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए कितना है, 30 year old, तो डी इसका आंसर रहेगा। Next 22, oral evidence of effect invalidating a document is admissible under section 92 and proviso 1, A इसका आंसर रहेगा। Next 23, the doctrine of estoppel is a, अब देखिए अगर आप बिहार सीरीज देखेंगे ना तो वहाँ पर दिया हुआ है रूल ऑफ इक्विटी। अब जो HP सीरीज है वहाँ पर दिया हुआ है रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस में तो ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है,
बट इट इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ इक्विटी। अगर क्वेश्चन आए कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज बेस्ड ऑन, तो रूल ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बट अब ये एचपी के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि ये रूल ऑफ एविडेंस ही आप लगाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाना है फिर। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए सेक्शन 145 पूरा लिख दिया इन्होंने ये, और ये पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो विटनेस से भी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग, यस। रेलेवेंट मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, ओके, और बीइंग प्रूव्ड, ओके। इवन इफ, नो इवन नहीं है वहाँ पर, बट यूज़ किया गया है। तो बट देखिए यहाँ पर है, इफ इट इज़, बट इफ इट इज़ टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय राइटिंग, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts which are to be used for the purpose of contradicting him, ठीक है ना। तो ये होगी स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए यानी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है सच न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल क्यों लेंगे, प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं, तो उन्हें लिखा हुआ है विदाउट बीइंग प्रूव्ड फॉर एनी पर्पस, ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें ठीक कौन सा रहेगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 25, ए को डिफेंडेंट इन अ केस कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को डिफेंडेंट, या फिर कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को डिफेंडेंट इफ देयर इंटरेस्ट आर आइडेंटिकल, या फिर एडवर्स टू ईच अदर। एडवर्स होंगे तभी तो क्रॉस करेगा, तो सी इसका आंसर रहेगा। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये आप जो यूपी सीरीज और बिहार सीरीज देखेंगे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन वहाँ पर ये। Next 26, in which of the following cases Supreme Court of India held that the rule of prudence requires that the evidence of an accomplice should ordinarily be corroborated by some other evidence? तो केस था फ्रांसिस स्टैनले वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर 2007, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 27, as regard question by a party to its own witness under section 154 of the Indian Evidence Act 1872, which of the following proposition expressions is correct? Option A, two statements sought to be contradicted in addition should be drawn to the previous statement. या फिर the person who calls witness is entitled to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. Option C, corroborating a witness by questioning him on surrounding circumstances. फिर है option D, formal statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact. तो इसमें यहाँ से क्या रहेगा, बी इज द आंसर। द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस इज एंटाइटल्ड टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ओनली एन एड टू इन्वेस्टिगेशन, द प्रैक्टिस इज नॉट बोर्न आउट ऑफ प्रूडेंस, वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेज मनु शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी, ए इज द आंसर। Next is 29. Order is defined as formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. ये कहाँ डिफाइन किया गया ऑर्डर, दैट इज सेक्शन 214 ऑफ CPC, बी इज द आंसर। 21 में क्या है, 21 में है कोड, 214 ये हो गया। 9 क्या है, जजमेंट, एंड 216 प्रेस्क्राइब्ड। Next 30, mean profit of property as defined in section 212 of CPC means those property which the person in wrongful possession of property actually received or might with ordinary diligence have received together with the interest on such profit. ये बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट वाले नहीं होते, विदाउट एनी इंटरेस्ट नहीं होता, सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड नो, विद इंटरेस्ट रहेगा, तो ए इसका आंसर रहेगा। Next 31, a decision in a civil suit may operate as res judicata against person not expressly named as party to a suit by the virtue of explanation 6 to section 11, C is the answer. Explanation 6 किसके लिए है, जहाँ पर representative suit हो या फिर PIL हो, public interest litigation, उन cases में। Next 32, a private transfer and delivery of property attached under section 64(2) of CPC shall not be void if made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment. अटैचमेंट से पहले अगर हो गया तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो यही इसमें वॉइड नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ए इसका आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं, ट्रैक्ट आफ्टर द अटैचमेंट फिर तो वॉइड हो जाएगा, बट रजिस्टर्ड आफ्टर अटैचमेंट फिर भी वॉइड हो जाएगा, डी बी एन सी ये भी गलत हो गया।
Next 33. A revision under section 115 CPC shall not operate as a stay of suit or on other proceedings before the court except where such suit or other proceeding is stayed by High Court. A is the answer. Next 34. The term acts under order 3 rule 1-2 is confined only. किसके related है ये? In respect of act done by the power of attorney holder in exercise of power granted by the instrument and would not include deposing in place instead of the principal, या फिर it would include deposing, या फिर but includes appearance as a witness on behalf of party. No, witness थोड़ी बन जाएगा. To deposing in place an interest instead of principal. No, ये नहीं होगा. तो A इसमें आंसर रहेगा. Next 35. Which of the following amendments can be allowed under Order 6 Rule 17 CPC? Amendment for granting relief on the basis of different approaches of this to the same fact. No, ये नहीं दे सकते. तो ये कर सकते हैं. फिर अमेंडमेंट टेकिंग नोट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये ऐसी भी हो जाएगा. फॉर करेक्टिंग दी मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा. तो ऑल ऑफ दी वो रहेगा. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 36. ऑन डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर नॉन कंप्लायंस विद एन ऑर्डर ऑफ फॉर डिस्कवरी अंडर ऑर्डर 11 रूल 21, द प्लेंटिफ क्या फ्रेश सूट लेके आ सकता है? द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग अ फ्रेश सूट और द सेम कोज ऑफ एक्शन एज मैटर ऑफ राइट. नो, ये नहीं कर सकता. तो बार है. कैन ब्रिंग नो. कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट ऑन द कोज ऑफ एक्शन, सेम कोज ऑफ एक्शन. डी इज द आंसर. ये का मेंशन किया गया है रूल 21 के सब रूल 2 में. नेक्स्ट 37. अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री absolve him from the liability of decree but can be rearrested. Does not absolve but he cannot be rearrested. देखिए दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल सेम हो गए. तो बी और सी दोनों ही आंसर हैं इसमें. और एक मेंशन किया गया सेक्शन 58 CPC और सब सेक्शन 2 है ये. Next 38. In a case party to a suit moved no application for the substitution of legal representative within the statutory period under Order 22 Rule 19 of the CPC. अब देखिए ऑर्डर 22 में रूल 19 है ही नहीं, रूल 12 तक ही है इसमें. तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था. अदरवाइज़ क्या होता है इसमें, सूट जो है ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा. तो कोर्ट को तो स्पेसिफिक ऑर्डर देने ही पड़ेंगे, है ना. नेक्स्ट 39. ए रिसीवर कैन बी सूड जनरली फॉर द एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी बाय थर्ड पार्टी या फिर कैन नॉट बी सूड. कैन सू विद द लीव ऑफ द कोर्ट. Can sue and can be sued for the act in his official capacity by a third party only with the leave of the court appointing him. तो C इसका आंसर रहेगा. Next 40. Subsequent to the filing of written statement under Order 8 Rule 9 of CPC, the defendant can file the proceeding by way of defense as set off and counter claim without the leave of the court. तो A इसका आंसर रहेगा. वहाँ पर सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए जो है ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट देनी है या फिर कोई और उसमें अमेंडमेंट करनी है तो ऑब्वियस विद लीव ऑफ द कोर्ट ही करना पड़ेगा. देखिए मेंशन किया गया है ये रूल 9 में, अदर देन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट. मतलब सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए ज़रूरत नहीं है लीव लेने की काउंटर कोर्ट से. नेक्स्ट 41. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held the 1999 and 2002 amendment of CPC are valid. They are constitutionally valid. तो वो था स्लेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ए इज़ द आंसर. ये 2019 के पेपर में हमने डिस्कस किया था. रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट 42. वेयर अ मोर्टगेजी obtains a decree for payment of money in satisfaction of claim arising under the mortgage, he is entitled to bring the mortgage property to sale without instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage under Order 34 and Rule 14 of the CPC. या फिर entitled to bring the mortgage property to sale only by instituting होगा ये. B is the answer. Next 43. The second appeal is permissible only if the finding is perverse. It was held in case of Dinesh versus Yusuf Ali. A is the answer. ये भी रिपीट क्वेश्चन है, HP सीरीज में ही हमने किया है, पिछले 3 पेपर में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट 44. द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक रिलीफ 1958. B is the answer. Next 45. Section 8 of Specific Relief Act can be invoked if compensation in money is an adequate relief.
नहीं कर सकते। डैमेज इजली असर्टेन, नो। इफ़ द आर्टिकल हेल्ड बाय पर्सन एज एन एजेंट ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट, तब कर सकते हैं। राइटली ट्रांसफर तब तो वो ही नहीं पाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होगा नो, फॉर्मेशन पार्टनरशिप नो, सेटल ऑफ स्पेशल वैल्यू ये हो सकता है, डीड ऑफ सेपरेशन नो, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 47, रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 26 SRA relates to mistake in expression of contract only, the contract itself, that is the formation of the contract, या फिर matter which are overlooked by the parties, no, इसमें नहीं होगा। मिस्टेक इन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, तो इसी पर जो है वो रेक्टिफिकेशन हो पाएगी, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 48, जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्रिशनरी, बट अब जो 2018 की अमेंडमेंट के बाद जो है ये क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। 2017 का पेपर है इसलिए इसमें डिस्क्रिशनरी था उस टाइम तक। नेक्स्ट 49, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोजिशंस। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ पेटेंट कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, यस करवा सकते हैं। फिर साइन अ कॉपीराइट इज स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, यस। एग्रीमेंट टू फॉर्म पार्टनरशिप इज स्पेसिफिकली नो, ये नहीं कर सकते, पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो किसी का फोर्स थोड़ी कर सकते हो। तो 3 इज इनकरेक्ट, 1 2 आर करेक्ट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 50, द प्रिंसिपल ऑफ क्वा टिमेट मीन्स सम फ्यूचर प्रोबेबल इंजरी टू द राइट्स और इंटरेस्ट्स ऑफ ए पर्सन, तो ए इसका आंसर रहेगा। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज पेपर सिविल लॉ 1। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.